Today we are discussing about the topic Transmission Control Protocol TCP, which is a part of Unit 4. Firstly, we will discuss about the basic part of TCP, introduction of TCP. UDP, when we are using the UDP can send the data fast, but it is not reliable. But the TCP can send the data reliably over a network. तो जो TCP है आपका वो reliable है आपके नेटवर्क के लिए. Two sides in the TCP protocol, one is sending TCP and another one is receiving side TCP. Means एक आपका sending side है, एक receiving side है. The sending side TCP takes the data chunk from the upper layer and put a TCP header on each chunk. This is called the segment. Means application layer से कोई data chunk आया transport layer पर, यहाँ पर उसका header add on हो गया, then this is called the segment. And this segment again passed on the network layer, and after adding some constant this will also become a IP datagram. So this is the basic working of TCP. The primary purpose of TCP is to provide a reliable logical connection between pair of process. Basically हम इसे इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि reliable है, connection oriented service देता है, error detection हो सकता है इसके अंदर checksum के through. तो this is the basic part. So next is TCP header and segment structure. TCP जो header है आपका 32 बिट का पार्ट है इसमें. जो इसमें header पार्ट है that is variable 20 to 60 byte. Header part is variable and that is 20 to 60 bytes. इसके अंदर सबसे पहले जो पार्ट है source port address, then destination port address, दोनों ही आपके 16 बिट के हैं. Then sequence number is of 32 bit. Acknowledgement number that is also of 32 bit. Then header length 4 bits, then these 6 bits are reserved, then 6 control fields each is of 1 bit, then window size is 16 bits, then checksum field 16 bits, then urgent pointer 16 bits, then the option 0 or more 32 bit words, and data are the optional. So this is the basic structure of TCP header part. The first one part is source port address. The source port address define the host which is sending the segment. Means आपका जो segment है वो send कौन कर रहा है उसके बारे में ये आपको बता रहा है. Then destination port address. Destination port address बताएगा कि the application programming the host that is receiving the segment. कि जो segment को receive कौन कर रहा है, receiving host आपका कौन है. Then the third one is sequence numbering. Sequence numbering जो होता है आपका 32 bit का होता है and the number assigned to the first byte of the data contained in this segment. फिर आता है acknowledgement number. This is also 32 bit field and this define the byte number that the receiver of the segment is expecting to receive from the other party. जो कि other party से expect कर रहा है receive करने के लिए. फिर आता है header field. जो header field है आपका 4 बिट का होता है and that indicate the length of the TCP header by number of 4 byte word in the header. आपको पता है कि header जो पार्ट है आपका 20 बाइट से लेकर 60 बाइट तक का हो सकता है. अगर आपका header मिनिमम है 20 बाइट का then जो ये header length field होगा आपका 5 होगा. मीन्स 5 into 4 equals to 20 जो कि आपका मिनिमम header length होता है. And maximum header length जो है आपका 60 बाइट का मीन्स 15 into 4 equals to 60 मीन्स this will hold the value 15. यानी कि इस फील्ड की जो वैल्यू होगी ऑलवेज बिटवीन द 5 एंड 15, 5 से लेकर 15 के बीच में ये वैल्यू होल्ड करता है. नेक्स्ट इज कंट्रोल फील्ड. कंट्रोल फील्ड के अंदर 6 पार्ट हैं आपके. फर्स्ट है URG, देन ECK, देन PSH, देन RST, देन SYN, देन FIN. URG जो है दैट इज टोल्ड अबाउट द अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड. फिर बताएगा एक्नॉलेजमेंट फील्ड इज वैलिड. फिर है आपको पुश द डेटा. फिर RST बताएगा रीसेट द कनेक्शन. सिंक जो है सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर. फिन जो बताएगा दैट इज टर्मिनेट द कनेक्शन. नेक्स्ट आता है विंडो साइज एंड विंडो साइज बताएगा कि द विंडो ऑफ साइज, विंडो का साइज के बारे में बताएगा. चेकसम जो फील्ड है फॉर एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल के लिए होगा और ये मैंडेटरी होता है TCP में जिससे कि आपके कनेक्शन का पता लगेगा कि रिलायबल है. फिर आता है अर्जेंट पॉइंटर फील्ड एंड दिस फील्ड इज यूज टू पॉइंट द डेटा दैट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड. जो अर्जेंटली रिक्वायर्ड है उसके लिए आप इसे यूज़ करते हैं. देन आता है ऑप्शन फील्ड.
दीज कैन बी अप टू 40 बाइट्स। ऑप्शन फील्ड्स जो होते हैं आपके 40 बाइट्स तक हो सकते हैं ऑफ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन इन द टीसीपी हेडर। देन डेटा फील्ड एंड इट कंटेन द डेटा दैट हैव टू बी सेंड। क्लियर? तो इस तरीके से यह होता है। इसी में है आपका टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। जो टीसीपी के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो आपका सेम 3-वे हैंडशेक में होता है, जैसा आपने ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा है। यहाँ पर होस्ट 1 दिखाया हुआ है या होस्ट 2 दिखाया हुआ है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो होस्ट 1 है अपनी सीक्वेंस भेज रहा है, सीक्वेंस एक्स, मतलब सिन भेज रहा है साथ में रिक्वेस्ट, जो कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। और जो होस्ट 2 है ये अपना सीक्वेंस भेज रहा है, सीक्वेंस वाई, और साथ में इस सीक्वेंस का एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये अपने सीक्वेंस को बता रहा है कि x+1 वहाँ आ चुका है, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए रेडी है, और इस y सीक्वेंस का वो इसी के भेज रहा है। +1 जो सीक्वेंस है वो ये बता रहा है कि आपका लास्ट सीक्वेंस आ चुका है। स्टेप 1 मीन्स द क्लाइंट सेंड द फर्स्ट सिन सेगमेंट, मीन्स यहाँ पर क्लाइंट ने पहला सिन सेगमेंट भेज दिया। स्टेप 2 क्या है, द सर्वर सेंड द सेकेंड सेगमेंट सिन प्लस AC के, मीन्स इसने अपना सिन भेजा है और साथ में इसका AC के भेज दिया। स्टेप 3 क्या है, द क्लाइंट सेंड द थर्ड सेगमेंट, दिस इज जस्ट एन AC के सेगमेंट, मीन्स ये इसका AC के भेज रहा है। तो दिस इज द नॉर्मल केस ऑफ TCP कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। This is the collision case when both want to establish the connection. In this event, two hosts simultaneously attempt to establish. यहाँ पर वही सेम होस्ट 1 और होस्ट 2 है और दोनों ही सेम टाइम पर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। इसने अपना सिन रिक्वेस्ट भेज दिया सीक्वेंस एक्स के साथ, इसने अपना सिन रिक्वेस्ट भेज दिया सीक्वेंस वाई के साथ। ये अब साथ में अपना सिन भेज रहा है और अपना उसका AC के भेज रहा है, ऐसे सेम ही भेज रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ कॉलिजन व्हेन बोथ वांट टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। ठीक है, अब ये तो हुआ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। फिर आता है कनेक्शन रिलीज। कनेक्शन रिलीज भी सेम होता है जैसा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, और ये भी आपका ही वही सेम 3-वे हैंडशेकिंग में होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, हम फिन यूज़ करते हैं। जैसे हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए सिन यूज़ करते हैं या फिन करते हैं। फिन मीन्स मतलब जो कनेक्शन है आपका डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। एंड कनेक्शन शुड बी रिलीज फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों साइड से आपका कनेक्शन रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ इसने सबसे पहले होस्ट 1 ने अपना फिन रिक्वेस्ट भेजा, इसने रिलीज के लिए रिक्वेस्ट भेजी, फिर इसने रिलीज के लिए रिक्वेस्ट भेजी, फाइनली इसने इस रिलीज के लिए AC के भेज दिया। तो दिस इज द कंप्लीट TCP कनेक्शन रिलीज। मीन्स यहाँ क्या दिखाया है कि टू रिलीज ए कनेक्शन पार्टी कैन सेंड ए TCP सेगमेंट विद द फिन बिट सेट, which means that it has no more data to transmit. When the fin is acknowledgement, then direction is shut down for the new data. Means जब फाइनली फिन का AC के यहाँ आ जाएगा तो वहाँ पर आपका शट डाउन हो जाएगा। इसी में आता है TCP कनेक्शन मैनेजमेंट मॉडलिंग। ये कुछ नहीं है, ये कनेक्शन के लिए दिखाया हुआ है कि क्लाइंट साइड से और सर्वर साइड से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 2 तरह की लाइंस दिखाई हुई हैं। एक इस कलर की लाइन है जो कि आपकी हैवी लाइंस है ये सब, और दूसरी आपकी डैशेड लाइन, ये डैशेड लाइन है। जो हैवी सॉलिड लाइन है ये नॉर्मल पाथ बता रहा है क्लाइंट के लिए, और जो डैशेड लाइन है ये नॉर्मल पाथ फॉर द सर्वर बता रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें तो क्लाइंट साइड में क्या हो रहा है, आपका कनेक्शन कॉल क्लोज है। उसने सबसे पहले सिन रिक्वेस्ट भेजा, मतलब वह कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। एस्टैब्लिश के बाद उसने जो भी डेटा देना था लेना था वो यहाँ सब कर लिया उसने। उसके बाद वो उसको तुरंत क्लोज करना चाह रहा है। अब एक तो ये होता है कि सबसे पहले वो फिन रिक्वेस्ट किया, उसने वेट 1 किया, पहले फिन रिक्वेस्ट भेजा, फिर दूसरी साइड से आया, फिर फाइनली उसका AC की मिला, फिर उसने वेट किया, फिर उसका कनेक्शन क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक तो डायरेक्टली मतलब वो तीनों साइड से क्लोज हो रहा है, फिर वो डायरेक्टली पहले फिन के बाद ही उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर क्लोज हो गया, और वो डायरेक्टली फिन प्लस AC के दे दिया तो फिर वो क्लोज हो गया। तो ये जो स्टेप है ये दिखा रहा है आपका क्लाइंट साइड में कि मीन्स एक्टिव आपका कनेक्शन है। दूसरा आ रहा है ये डैशेड लाइन। ये जो डैशेड लाइन है ये आपका दिखा रहा है आपका सर्वर साइड का नॉर्मल पाथ कनेक्शन क्लोज था। उसने उसकी रिक्वेस्ट को लिसन किया, लिसन करने के बाद उसने सिन भेजा, और रिप्लाई में वो सिन प्लस AC के भेज सकता है। सिन रिसीव हुआ, उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। एस्टैब्लिश होने के बाद आपका उसने वेट के लिए भेज दिया, मीन्स पैसिव क्लोज करना चाह रहा है। यहाँ पर उसको लास्ट AC के मिला है और देन आपका कनेक्शन क्लोज हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ और भी दिखाया हुआ है, जैसे सिन रिसीव हो रहा है तो डायरेक्टली वो क्लोज भी कर सकता है कनेक्शन।
तो ये जो है बेसिकली ये कनेक्शन मैनेजमेंट मॉडलिंग है, जो ये शो कर रहा है कि आपका क्लाइंट और सर्वर साइड पर किस तरह से कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और किस तरह से आपका मैनेजमेंट मॉडलिंग होती है टीसीपी के अंदर।